آمین۔ آج پھر ایک ہفتہ کے بعد پھر خدا نے ممکن کیا ہے اور خدا نے زندگی سلامتی بخشی ہے، صحت تندرستی دی ہے، خاندانوں کو سلامت دی ہے، سلامتی بخشی ہے، برکت دی ہے، اور اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم پھر ایک بار پھر خداوند کے حضور میں موجود ہیں۔ وہ شخص بڑا بابرکت ہے اور بڑا مبارک ہے جو خدا کی آواز کو سنتا ہے، خدا کے کلام کو سنتا ہے۔ اور اگر آپ لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ، مبارک ہے وہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا، سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، مبارک ہے، آپ لوگ مبارک ہیں۔ یاد رکھیں یسوع مسیح کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے آ کر یسوع مسیح کی خوشامد کرنا شروع کر دی۔ آپ لوگ خوشامد کو سمجھتے ہیں نا؟ کسی کی تعریف کرنا یا کسی کو پنجابی جو کہتے کسی کو تڑانا، آؤ بھگت کرنا، تڑانا کسی نے۔ وہ ایک عورت آئی اور یسوع مسیح کو کہتی ہے کہ مبارک ہے وہ عورت، مبارک ہے تو، مبارک ہے وہ عورت جس کے رحم میں تو رہا، جس کا تو نے دودھ پیا۔ اور یہ آ کر یسوع مسیح کی خوشامد کر رہی ہے، لیکن یسوع مسیح نے کہا نہیں، اس سے زیادہ مبارک وہ ہے جو میرا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ یعنی ان سے زیادہ رتبہ خداوند نے ان کو دے دیا ہے جو اس کا کلام سنتے ہیں، جو اس کی آواز سنتے ہیں، اور جو اس کا کلام سنتے ہیں، آواز سنتے ہیں، وہ اس کے رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہے، ریلیشن ہے۔ ہمارا خدا ریلیشن کا خدا ہے، رشتے جوڑتا ہے، رشتوں کا خدا ہے ہمارا۔ دنیا کے معبود جو ہے، دنیا کے لوگ مذاہب کے اندر طرح طرح کے نام لے کر خداؤں کو پکارتے ہیں۔ کوئی کسی کو بھگوان کہتا ہے، کوئی خدا کہتا ہے، کوئی کسی طریقے سے نام سے پکارتا ہے، لیکن واحد ایک مسیحی ہے جو خدا نے جو باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ وہ اپنا رشتہ ظاہر کرتے ہیں، رشتہ ظاہر کرتے ہیں، باپ اور بیٹے کا رشتہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور کسی مذاہب کے اندر خدا کو باپ کہنے کے اتھارٹی، حق کسی کے پاس نہیں ہے، صرف مسیحیوں کے پاس ہے۔ ہاللیلویا۔ اب اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ بھائی بولو، اچھا شاید کچھ شک کیا لگے سے آئے میرے ساتھ نکالیں کلام خدا میں سے بزرگ متی رسول کی انجیل ہے، متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان ہے، اور یہ نئے عہد نامہ کے اندر، عہد جدید کے اندر یہ پہلی اناجیل ہے اور اس کا آخری 28واں باب ہے۔ عہد جدید کے اندر بزرگ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیلی بیان ہے اور اس کا 28واں باب ہے، اور یہ نئے عہد نامے کی پہلی کتاب ہے، پہلی انجیل ہے، اور یہ صفحہ نمبر 39 پر ہے۔ اگر کسی کو نہیں مل رہا تو صفحہ نمبر 39 ایک کم 40 پر آپ کو ملے گا۔ متی رسول کی انجیل ہے اور اس کا 28واں باب ہے، اور اس کی 18ویں آیت جو ہے وہ کلام خدا میں سے تلاوت کریں گے۔ یہاں پر کتنے ہیں جن کے پاس بائبل ہے؟ نیا 39 ہے، ذرا بائبل اوپر کرے گا۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس بائبل ہے؟ ویری گڈ، آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اور میں چاہوں گا کہ اس حوالہ کو ہم سب مل کر پڑھیں گے، ہم سب مل کر، جتنوں کے پاس نہیں ہے وہ بھی ذرا بلند آواز سے میرے پیچھے پیچھے بولیے گا۔ ہم اس کی 18ویں اور 19ویں اور 20ویں آیت جو ہے وہ کلام خدا میں سے تلاوت کریں گے۔ کلام خدا میں یوں لکھا ہوا ہے، یسوع نے بلند آواز سے بولیے گا، یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جا کر
सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कलामे खुदा का पढ़ा जाना सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। अभी हमने इस अंजील के अंदर ये एक बड़ा खास मैसेज है, ये एक बड़ा खास पैगाम है और ये समझ लें कि ये मसीहियों की बुनियाद है, एक मसीही तालीम की एक बुनियाद है। सबसे पहले इससे पहले कि यीशु मसीह आसमान पर उठाए जाते और वो जाने से पहले अपने शागिर्दों को एक नसीहत, एक मैसेज, एक लॉ देकर गए हैं, एक हुक्म देकर, एक कानून देकर गए हैं कि मेरे जाने के बाद तुमने ये करना है। और याद रखें ये जो डिसाइपलशिप है ये बड़ी जरूरी चीज है। आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे मसीही ईमानदार, बहुत सारे ईमानदार लोग हैं जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, ईमान रखने वाले हैं या रख चुके हैं या जो यीशु मसीह में जिंदगी गुजारते हैं, उनके लिए डिसाइपलशिप में आना बहुत जरूरी है। ये जो शागिर्दियत का सिलसिला है ये एक मसीही की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। जब तक आप डिसाइपलशिप में नहीं आएंगे आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं आएगा, आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं आएगा और डिसिप्लिन लाने के लिए शागिर्दियत जरूरी है। आज बहुत सारे ईमानदार हैं जो इसी बात पर बिलीव करते हैं, ईमान रखते हैं। कोई काम हो, किसी तरह की कोई सोच हो, किसी तरह का कोई काम हो तो कहते हैं जी रूहुल कुद्स मेरा उस्ताद है, रूहुल कुद्स मुझे सिखाता है, रूहुल कुद्स मेरे लिए सब कुछ करता है। ये बात झूठ नहीं है कि रूहुल कुद्स हमें सिखाता है, रूहुल कुद्स हमें उस्ताद है, हमारा लीडर है, रूहुल कुद्स हमारी रहनुमाई करता है। लेकिन इससे पहले कि रूहुल कुद्स आपको सिखाए, आपको इससे पहले एक मराहिल से गुजरना है, एक सिलसिला है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर बारहा ये तालीम दी जा चुकी है। अगर आप अहदे जदीद के अंदर और अहदे अतीक के अंदर भी पढ़ें तो आपको ये सारी चीजें इसी तरह एक मेंटेन, एक डिसिप्लिन के अंदर नजर आती हैं। और ये चीजें एक मसीह की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। और आजकल के जो मसीही हैं वो मसीही बनना पसंद करते हैं, शागिर्दियत में आना पसंद नहीं करते। ये लोगों के अंदर एक गलत कॉन्सेप्ट है, ये गलत तालीम है जो आजकल के मसीहियों को, नौजवान बेटियों को, नौजवान बेटों को ये तालीम, ये चीज खराब कर रही है। और यीशु मसीह ने कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, ये अथॉरिटी मेरे पास है, अब मैं ये इख्तियार तुम्हें देता हूं। अब बाप ने मुझे भेजा था, मैं तुम्हें भेज रहा हूं, बाप ने मुझे भेजा था, मैं तुम्हें भेज रहा हूं। और जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले उसी जगह पर बालाखाना में, यरूशलेम में, उसी जगह पर ठहरे रहना। और इस बात को सीखना, समझना, ये मुकाशफा हमारी रूह के अंदर आए, ये बड़ा जरूरी है। इस मुकाशफे से हर एक मसीह को बाखबर होना चाहिए, बेखबर नहीं होना चाहिए। याद रखें, हमें
कोई नई न्यूज आती है तो हम टीवी पर जल्दी से सुनते हैं, हम खबरों से बड़े बाखबर रहते हैं, लेकिन तालीम से बेखबर रहते हैं। अब यहां पर जो लिखा है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, ये डिसाइपलशिप में लेकर आओ। जैसी डिसाइपलशिप मैंने तुम्हें दी थी, जैसा डिसिप्लिन मैंने तुम्हें दिया है, जिस डिसिप्लिन के अंदर मैंने तुम्हें रखा है, जिस डिसाइपलशिप की तालीम मैंने तुम्हें दी है, अब यही डिसाइपलशिप, यही शागिर्दियत है, यही तालीम अब तुम कौमों में जाकर फैलाओगे और तुम कौमों को शागिर्द बनाओगे। शागिर्द बनाओ, पहले शागिर्द बनो, फिर शागिर्द बनाओ। शागिर्दियत बड़ी जरूरी है। हर एक मसीही ईमानदार बनना चाहता है, मसीह यीशु जैसा बनना चाहता है, मसीह यीशु जैसा काम करना चाहता है, लेकिन इस मराहल से गुजरना नहीं चाहता। आजकल लोगों के उस्ताद बहुत ज्यादा है, लोग खुद उस्ताद हो चुके हैं, लोग खुद उस्ताद बन चुके हैं। कलीसिया जो है ये शागिर्दों की जमात है, मेंबरों की जमात नहीं है। ये बात को याद रखिएगा। कलीसिया शागिर्दों की जमात है, शागिर्दों की जमात है। जहां पर यीशु मसीह पर ईमान लाने वाला है वो शागिर्द है यीशु मसीह का। वो यीशु मसीह के अंदर उसकी एक डिसिप्लिन है। हमारा खुदा जो है ये अबतरी का, बेतरतीबी का खुदा नहीं है, बल्कि हमारा अमन का खुदा है, हमारा खुदा तरतीब का खुदा है। और हमारा खुदा चाहता है कि हर एक शागिर्द की जिंदगी के अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। और ये डिसिप्लिन शागिर्दियत में, जब आप शागिर्दियत में आते हैं, फिर ये डिसिप्लिन आपकी जिंदगी में आता है, फिर आप डिसाइपलशिप में आते हैं, फिर आप उससे गुजरते हैं, फिर आप उस मराहल से गुजरते हैं। और कलीसिया के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आजकल लोग, नौजवान जो हैं, बेटियां, बेटे, बुजुर्ग जो हैं, वो इस डिसिप्लिन में, इस डिसाइपलशिप में आना पसंद नहीं करते। एक ही दायरे में घूमते रहते हैं, एक ही दायरे में घूमते रहते हैं, उसी में घूम घूम कर उसी में से निकल जाते हैं और सारी उम्र गुजर जाती है। ना खुदा जिंदगी में कोई मौजज़ा करता है, ना आपके कदम आगे बढ़ते हैं, ना आप सरफराजी पाते हैं, ना आप पर इकबालमंदी आती है, ना आपके पीछे कोई लोग खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि आप डिसाइपलशिप से गुजरे नहीं हैं, आप शागिर्दियत से गुजरे नहीं हैं। ये मराहल कलीसिया के अंदर हर एक नौजवान के अंदर होना चाहिए, हर एक बेटी के अंदर, बेटे के अंदर, बुजुर्ग के अंदर, बड़े के अंदर, छोटे। रूहुल कुद्स की ताबेदारी नहीं कर सकते आप, रूहुल कुद्स के अंदर डिसिप्लिन में नहीं रह सकते आप। जब तक डिसिप्लिन में नहीं आएंगे, शागिर्दियत में नहीं आएंगे, आप हकीकी मसीही नहीं कहलाएंगे। शागिर्दियत के अंदर बहुत सारे मराहल से गुजरना पड़ता है। बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे उस्ताद और शागिर्द का जिक्र है। हम देखते बहुत सारे उस्तादों का, शागिर्दों का जिक्र पाया जाता है। अगर हम पुराने अहदनामा के अंदर भी चले जाएं तो ये सिलसिला, ये मराहल, ये तरीकाकार, ये डिसिप्लिन तब से चला आ रहा है। हम देखते हैं मूसा और यशुआ के अंदर, एलिया अलीशा के अंदर, एली काइन है, सैमुअल है उसके साथ, अलीशा और जहाजी है उनके साथ, हम यस्सु है उनके शागिर्द हैं उनके साथ, हम शागिर्दों के आगे शागिर्द हैं उनके साथ। वो आगे शागिर्द बनाकर आगे कलीसियाएं कायम कर रहे हैं, वो आगे चल रहे हैं। ये सिलसिला, ये प्रोसेस इसी तरह चल रहा है। जो इसके प्रोसेस से उलट जाता है, खुदा कभी भी जो पीछे लेट डाउन करते हैं या डबल क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, हमारा खुदा चीटिंग पसंद नहीं करता। हमारा खुदा चीट नहीं है और ना चीटिंग पसंद करता है। जिस लोग चीटिंग करने की कोशिश करते हैं, डबल क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, खुदा उनको सरफराज नहीं करता। याद है एक शागिर्द ने चीटिंग करने की कोशिश की थी, आपको पता है बाइबल मुकद्दस के अंदर एक शागिर्द ने उस्ताद से
उस्ताद को डबल क्रॉस करने की कोशिश की, और पता क्या हुआ? वो सारी लानत उस शागिर्द के ऊपर आ गई। उस्ताद को पता नहीं है, उस्ताद को पता नहीं है। एक शख्स आया है मालो दौलत लेकर, सब कुछ लेकर, और जब तक आप उस्ताद के ताबे नहीं, आप दुनियादारी के ताबे हैं, आप बाबरकत नहीं हो सकते। यशवा और जो मूसा है, मैं इनकी एक आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है, जो उस्तादी शागिर्दी का जो मराहल है, ये बड़ा खास है। मैं जब इनकी जिंदगी को स्टडी कर रहा था, पढ़ रहा था, तो याद रखें यशवा एक खास मेंबर था, खास उसके साथ जुड़ा हुआ एक लीडर था, एक छोटा नुमाइंदा था जो मूसा के साथ जुड़ा हुआ था। वहां से तब से जब से वो मिस्र से निकल कर आए हैं, तब से वो नुमाइंदा, तब से उसकी नुमाइंदगी के अंदर चल रहा है, और वो चलते चलते एक ऐसे मराहिल पर पहुंच गए कि वहां पर अब जरूरत पड़ी कि अब यहां पर सरदार बनाए जाएं, अब यहां पर मुकर्रर किया जाए। किसी को 100 पर, किसी को 1000 पर, किसी को 500 पर, किसी को किसी पर, अब इंसाफ किया जाए। अब मूसा ने कहा कि मेरे पास सकत नहीं है, मेरे पास कुव्वत नहीं है, अब मैं इतने लोगों का इंसाफ नहीं कर सकता। अब ये है कि अब लोग बांट दिए जाए। हुण यानी पंजाबी का मतलब हुण चौधरी बना दिते जान जेड़ा इंसाफ करन। पंजाबी में सीधे लफ्जों में यह है कि हुण मैं सारियां दा इंसाफ नहीं कर सकता, हुण इत्थे चौधरी बना दिते जान, कोई 100 ते, कोई 50 ते, कोई 200 ते, कोई 1000 ते। हुण के जेड़ा सब तो मुश्किल फैसला होवे वो तुसीं मेरे को ले आना। वहां पर एक शागिर्द था, एक शागिर्द वहां पर था। अब होना तो ये चाहिए था कि उसको कहना चाहिए था, उस्ताद जब से तू मिस्र से निकला है मैं तेरे साथ चल रहा हूं, मैं तेरे साथ चल रहा हूं, मैंने तेरी खिदमत की है, मैंने रातों को उठ कर तुझे पानी दिया है, मैंने तेरे हर एक काम के आगे तेरे साथ हाँ की है, तेरे साथ ना नहीं की है, मैं हर एक काम में तेरे साथ रहा हूं, तो मुझे भी तो किसी पर हुकूमत देना, मैं भी तो किसी का इंसाफ करूं, मुझे भी 500 1000 पर अथॉरिटी दे कि मैं इख्तियार करूं, मुझे भी दे। लेकिन उसने यशुआ को किसी पर मुकर्रर नहीं किया। पढ़ा है आपने बाइबल मुकद्दस को, यशुआ किसी का इंसाफ नहीं कर रहा, मूसा कर रहा है, लोग कर रहे हैं, और मूसा खेमा से बाहर आ जाता है, लेकिन वो खेमा के अंदर ही पड़ा रहता है, वो खेमा के अंदर ही दुआ करता रहता है। और याद रखें वो जो इंसाफ करने वाले थे, वो जो चौधरी बने थे, जिनको उन्होंने मूसा ने मुकर्रर किया था, वो सारे के सारे एक ही जगह पर संकट है, स्टॉप है, वो अपनी उसी अपनी चतुराहट पर बड़े फख्र कर रहे हैं। लेकिन याद रखें यशुआ को खुदा ने उस जगह पर लाया जहां पर जब से ही मूसा की वफात हुई, तो खुदा ने उन चौधरियों में से किसी को नहीं उठाया है, बल्कि उसको उठाया है जो डिसाइपलशिप के अंदर था, जो शागिर्दियत के अंदर था, जो दिन और रात उस्ताद की ताबेदारी कर रहा है, जो दिन और रात उस्ताद के कलाम को सुन रहा है, उस्ताद की बातों को सुन रहा है। किसी और को नहीं उठाया बल्कि उसको उठाया और कहा जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे तेरे भी साथ रहूंगा। ये लफ्ज खुदा ने किसी और के साथ नहीं कहे, ये लफ्ज खुदा ने किसी और को नहीं कहे। एक शागिर्द को बोला था कि जैसे मैं तेरे उस्ताद के साथ था वैसे अब तेरे साथ रहूंगा। वो पहलो शायद यशुआ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ मूसा ਦੀ ਤੇ ਚੌਧਰੀ मूसा ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਦੁਆਵਾਂ ਜੋ ਗਏ, ਖੈਮੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ बस, तेरे को और कोई काम नहीं, तेनू की मिले। उसने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं लगाया, कहते होंगे लोग उसको, लेकिन वो डिसाइपलशिप में रहा, शागिर्दियत में रहा। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है बस खुदा के कवि हाथ के नीचे ठहरे रहो, वो वक्त पर आपको सर बुलंद करेगा। वो वक्त आएगा आपकी जिंदगी में और खुदा लाएगा, तब लाएगा जब आप उस्ताद की ताबेदारी में रहेंगे। फिर वो कहेगा जैसे मैं तेरे उस्ताद के साथ था वैसे तेरे भी साथ रहूंगा। अब उठ,
अब वही जो उसके ऊपर चुदराहट कर रहे थे, अब सारे यशुआ के अंदर हैं। अब सारे यशुआ की बात को सुन रहे हैं। जैसे यशुआ कह रहे वैसे सारे पीछे पीछे चल रहे हैं। ये है सरफराजी, ये है इकबालमंदी, ये है खुदा की तरफ से इनाम और गिफ्ट जो सब्र से उसका इंतजार करते हैं। खुदा उनको उठाता है। एलिया और एलीशा के अंदर भी ऐसा ही था। एक और उस्तादी शागिर्दी थी, याद रखें। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे उस्ताद के अंदर ये क्वालिटी है। एली कायम था, उसका एक शागिर्द था सैमुअल। एली कायम के अंदर एक कमजोरी थी, एक वीकनेस थी। वो इस्राएल का इंसाफ करने वाला था, लोगों का इंसाफ करता था। पूरी इस्राएल उसके आगे आती थी, उसके आगे अपनी बातें शातें रखती, जो कुछ उनके इंसाफ थे। पूरी कलीसिया को तालीम दे रहा है, पूरी कौम को तालीम दे रहा है, लेकिन अपने बच्चों की तरबियत कर नहीं पाया, अपने बच्चों को बचा नहीं सका। लेकिन उसी की इवज फिर उसकी मौत हुई। अपने बच्चों को तालीम नहीं दे पाया। पूरी कौम का इंसाफ करने वाला है, तालीम देने वाला है, कलाम सुनाने वाला है, लेकिन अपने बच्चों को सिखा नहीं पाया। और उसका आगे शागिर्द हुआ, तो शागिर्द के अंदर भी वही चीज है। अब पूरी इस्राएल जो है वो सैमुअल के आगे आती है, कहती है तू हमारा इंसाफ कर। सैमुअल पूरी कौम का इंसाफ कर रहा है, सबको बता रहा है। खुदा डायरेक्टली बातें कर रहा है सैमुअल के साथ। सैमुअल बचपन में था, तब से खुदा की एनाइंटिंग के अंदर था, खुदा का रूह उसके अंदर था और खुदा की हिकमत उसके अंदर थी। वो हिकमत से इस्राएल के फैसले करता था, लेकिन जो चीज उसके उस्ताद के अंदर थी वही उसके अंदर थी। वो अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर पाया और आगे सैमुअल भी अपने बच्चों की तरबियत कर नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसके उस्ताद ने ये उसको सिखाया ही नहीं था। याद रखें, डिसाइपलशिप के अंदर आना बहुत जरूरी है। अगर आप रूहुल कुछ का तजर्बा करना चाहते हैं तो फिर शागिर्दियत में आना होगा, फिर शागिर्दियत के मराहिल से गुजरना होगा। अगर आप यीशु मसीह की जिंदगी का तजर्बा करना चाहते हैं तो फिर आपको शागिर्दियत में आना होगा, फिर आपको शागिर्द बनना पड़ेगा। यीशु मसीह ने कहा कि चाहो सब कौमों को शागिर्द बनाओ। यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम्हें फिर लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। उसने अपने लिए फौज इकट्ठी नहीं की है, उसने अपने लिए सूर में लड़ने वाले इकट्ठे नहीं किए हैं, उसने अपने लिए शागिर्द बनाए हैं। और वो आगे भी तालीम शागिर्द बनाने की तालीम दे रहा है कि चाहो सब कौमों को शागिर्द बनो। जब तक आप डिसाइपलशिप में नहीं आएंगे, आप यीशु मसीह का तजर्बा कर नहीं सकते, आप यीशु मसीह की मोहब्बत को नाप नहीं सकते, नहीं तजर्बा कर सकते आप, नहीं। क्योंकि कलीसिया शागिर्दों की जमात है। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि जाओ सब कौमों को मेंबर बनाओ, लिखा है जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ। शागिर्द बनाओ, जाकर शागिर्दियत लाओ, शागिर्दियत सिखाओ उनको। जब तक ये डिसिप्लिनशिप में नहीं आएंगे, डिसिप्लिन इनके अंदर नहीं आएगा। आजकल मसीही ईमानदार नौजवान बेटियां बेटे आज डिसिप्लिन के अंदर क्यों नहीं है? क्योंकि वो सीखना और शागिर्दियत में आना पसंद नहीं करते हैं। और इसीलिए यीशु मसीह के मुकाशफे से, रूहुल कुद्स के मुकाशफे से, भेद से बेखबर है। कुछ लोग दुआएं करते हैं, 3-3, 4-4 घंटे दुआएं करते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी अंदर से खाली है। क्यों? उनको शागिर्दियत की जरूरत है, उनको सीखने की जरूरत है। रूहुल कुछ कहता है जिस तौर से दुआ करना चाहे तुम नहीं जानते। यीशु मसीह और शागिर्दियत के चंद असूल है, वो आपको बताता चला जाऊं, फिर उसके बाद हम दुआ करेंगे। पहला असूल जो शागिर्द के अंदर है होना चाहिए, वो उस्ताद के करीब रहता है। उस्ताद के करीब रहता है, उस्ताद के बिल्कुल करीब, उसके साए में रहता है। आपको शागिर्द के मतलब का पता है?
क्या है पता है किसी को? शागिर्द का मतलब क्या है? शागिर्द फारसी जुबान का लफ्ज है और इसका मतलब है कि शाह के गिर्द घूमना। शाह बादशाह के जो अथॉरिटी रखता है, जो इख्तियार रखता है, उसके गिर्द घूमना, ये शागिर्द है। जो उस्ताद के करीब नहीं है, उस्ताद के गिर्द घूमता नहीं है, उस्ताद को देखता नहीं है, उस्ताद क्या करता है, उस्ताद किस तरह बोलता है, उस्ताद किस तरह करता है, उस्ताद किस तरह दुआ करता है, उस्ताद किस तरह कलाम सुनाता है, उस्ताद के अंदर क्या क्या एबिलिटी है, ये जब तक आप करीब नहीं आएंगे आपको हासिल नहीं होगा। यीशु मसीह जब जमात से कलाम करते थे तो और तरह से करते। जब बाला खाना में आते, खिलवत खाना में आते, जब किसी घर में बैठते, फिर शागिर्दों को समझाते कि ये बात ये थी, ये बात ये थी, क्योंकि वो गुर्बत के अंदर थे, वो करीब थे उसके। जब तक आप उस्ताद के करीब नहीं रहेंगे आप सीख नहीं सकते। मरकज 4 बाब उसकी 34वीं आयत को आप पढ़ सकते हैं। फिर दूसरी बात है, उस्ताद की बातों को सुनता है तवज्जो से सुनना उस्ताद की बातों का। आजकल लोग सुनना पसंद नहीं करते। पौलुस रसूल कहता है ये लोग सुन सुन के सुन्न हो गए। क्यों? अब सुनने की सकत नहीं है, लोग परेशान हैं। लोग ढूंढ रहे हैं कि सही तालीम कहां पर है, सही उस्ताद कौन है, सही तरीकाकार कहां पर है। आप जब तक शागिर्दियत में नहीं आएंगे आप रूहुल कुछ का तजर्बा कर नहीं सकते। बहुत सारे लोग हैं नौजवान, उनसे बात करें कि भाई आप फलां काम कर नहीं सकते जी, पाक रूह मैनू सिखाएगा। ये बात सच है, लेकिन इसके पीछे स्याको सबाक क्या है ये आप नहीं जानते। रूहुल कुछ सिखाता है। लिखा है कि जिन उस्तादों को खुदा ने मुकर्रर किया है उनसे सीखना जरूरी है। जिन उस्तादों को खुदा ने मुकर्रर किया है, और शागिर्द बनना ये खुदा की इलाही मर्जी है, ये इंसान की मर्जी नहीं है, ये खुदा की मर्जी है। खुदा चाहता है कि शागिर्द बनो। ये साया कहता है उसने मुझे शागिर्द सी जुबान बख्शी है और शागिर्द सा सुनने के लिए मुझे काम दिए हैं। अब मैं शागिर्द सी जुबान मुझे बख्शी है, मैं शागिर्दों की तरह बोलूंगा और शागिर्दों की तरह सुनूंगा। उसने सुनने वाले कान भी मुझे शागिर्द की तरह के दिए हैं, बोलने वाली जुबान भी मुझे शागिर्द की तरह की दी है। ये साया की किताब उसके 50वें बाब में पढ़े जाकर कि मुझे शागिर्द की जुबान बख्शी गई है। वो कह रहा है मुझे शागिर्द की जुबान बख्शी गई है। मैं इस बात के अंदर हूं, मैं डिसिप्लिन के अंदर हूं। जब तक डिसिप्लिन के अंदर नहीं है आप अच्छे डिसाइपलशिप में नहीं आ सकते, अच्छे डिसाइपल नहीं बन सकते। पहला ग्रंथियों उसका 2 बाब है और 2 तिमोथियस है उसका 1 बाब 11वीं आयत के अंदर पढ़ें। जिनको खुदा ने मुकर्रर किया है उनके ताबिया रहें, उनसे सीखें। और ये खुदा की मर्जी है। खुदा ने पता क्या कहा? उसने कहा आसमान खुला, आसमान से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा, इसकी सुनो। इसकी क्या करो? सुनो। इसकी सुनो, इससे सीखो। कहता है मुझसे सीखो, मुझसे सीखो। तो मुझे उस्ताद कहते खूब कहते, क्योंकि मैं हूं, मैं उस्ताद हूं। मुझसे सीखो, मैं सिखाने के लिए आया हूं। और याद रखे, और इंताकिया के अंदर बाइबल मुकद्दस के अंदर बाइबल मुकद्दस है इस बात की शहादत देती है कि मसीही वही कहलाए थे जो उसके शागिर्द थे। लिखा है शागिर्द पहली बार इंताकिया के अंदर मसीही कहलाए थे, क्योंकि वो डिसाइपलशिप से गुजरे थे, इसलिए वो मसीही कहलाए थे। यानी जो शागिर्द है वो मसीही है। अगर आप शागिर्दियत के अंदर नहीं है आप मसीही नहीं, आप गलत मसीही होने का दावा करते हैं। यीशु मसीह के बड़े सुनने वाले थे, बड़े फॉलोअर थे, बड़े यीशु मसीह को देखने वाले हजारों की तादाद पीछे लगी होती थी, लेकिन अंताकिया के अंदर कोई मसीही नहीं बनया। किसी ने नहीं उन्हें कहा कि ऐ मसीही है, शागिर्दों को कहा कि ये मसीही है।
क्यों? क्योंकि ये शागिर्द हैं, ये शागिर्द हैं, ये अच्छे शागिर्द हैं, ये सीख चुके हैं। और बहुत सारे जो उस्ताद से सीखता है वो शागिर्द है, जो उस्ताद के करीब रहता है, उस्ताद के गिर्द घूमता रहता है। आजकल लोगों ने बड़े रूहानी माँ प्यो बनाए ने, बड़े माँ प्यो जिन्हों थोड़ा जा वेंदे ने, ए भी मेरा उस्ताद है, ए भी मेरी रूहानी माँ है, ए मेरा रूहानी बाप है, ए मेरा फलाना है, ए मेरा फलाना है। ऐसी तालीम से बाहर आ जाए, आप खतरे के अंदर हैं। आपको बेस्ट डिसाइपलशिप की जरूरत है। आपको कलाम वो शागिर्द, वो उस्ताद बनाए जो आपको यीशु का शागिर्द बनाए। ये नहीं कहे कि मेरा शागिर्द है, वो उसके ताबिया हो कि जो आपको यीशु का शागिर्द बनाए, जो आपको यीशु के पास लेकर जाए, जो आपको यीशु की राह दिखाए, जो आपको कलाम की सही तालीम दे, जिससे आप यीशु मसीह तक पहुंच सके। आजकल लोग की बस अपने फॉलोवर बढ़ाने वास्ते ना, अपना कुछ करने वास्ते, मेरा वो भी शागिर्द है, 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 वो भी शागिर्द है, आउंदा भावें कख ना होवे उन्हां ते फिर उत्थों जाहिर की हुंदा है, उस्ताद नूं भी कख नहीं आउंदा। अगर इत्थे किसी नूं कहिए भाई जी आवाज़ां ठीक करना, ते ओहदा उस्ताद बड़ा मन्निया तन्निया होवे ते कहे जी मैं असगर साहब दा शागिर्द हां, ते इत्थे गाना ना आवे, ते जेड़े असगर नूं जानदे ने कहणगे ये असगर दा शागिर्द नहीं है, क्योंकि इहदे च ओहदी क्वालिटी है ही नहीं। ते जेड़े असगर नूं नहीं जानदे ने कहना लगदा है वो भी इंज दा ही होना। क्यों? क्योंकि शागिर्द के अंदर से उस्ताद का अक्स नजर आता है, उस्ताद नजर आता है। और लोगों के अंदर उस्ताद नहीं, लोग इससे गलत फहमी च रहे कि मेरे अंदर पाकरू है, पाकरू आप लोगों ने पाकरू को एक मुलाजिम समझा हुआ है, मुलाजिम समझा हुआ है कि ये मेरा मुलाजिम है, पाकरू ये कर दे, पाकरू वो कर दे, पाकरू इधर आ जा, पाकरू उधर चला जा, पाकरू इधर चला जा, ये कर दे, वो कर दे, उसको उठा दे, इसको बैठा दे, इसको ये कर दे। ये नहीं है। उसे क्या बाप से वो भेजेगा, किसके नाम से? मेरे नाम से, यीशु के नाम से रूहुल कुद्स आता है। उसने कहा वो बाप से भेजेगा मेरे नाम से, डायरेक्ट नहीं। जेड़ा यीशु मसीह नूं नहीं जानता वो देखो रूहुल कुद्स भी नहीं, जे झूठा है। मैं बहुत सारे ऐसे ईमानदार वेखे ने जिहड़े जिंदगियां स्टेज ते आके ते बल्ले बल्ले ते उच्ची आवाज ते ये ते वो इंज ते उंज ते महल्ले च लैंग्वेज भी खराब, तौर तरीका खराब, किसी जगह ते चले, किसी पार्टी च चले, किसी जश्न च चले गए ते उंज दे हो गए कि रूहुल कुद्स ते अंग्रेज़ा नहीं तालीम देंगे। ऐसे हैं, ऐसे आप डिसाइपल हैं, ऐसे शागिर्द हैं जो दिन को कुछ और है, रात को कुछ और है। जो दिन को आप स्टेज पर हालेलुया हालेलुया करते हैं, और जैसे स्टेज से नीचे गए हैं हमारी फितरत, हमारी सोच, हमारा सब कुछ बिखर गया। क्या रूहुल कुद्स चंद घड़ियों के लिए आपके पास आता है? उसने कहा कि तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम्हारे अंदर बसा हुआ है। अगर तुम मक़दस हो तो रूहुल कुद्स है, अगर तुम मक़दस नहीं हो तो रूहुल कुद्स नहीं है, पाकरू नहीं है, क्योंकि पाकरू नापाक बर्तनों में नहीं आता। कि इतने नौजवान है गल्लां भी पुठियां सीधियां करी जान ते कहण मेरे अंदर भी पाकरू है, मेरे अंदर भी पाकरू है, गलत गल भी करी जान, कुड़ियां मुंडियां दे गलत रिलेशन ने, फिर भी कहते मेरे अंदर पाकरू। ये झूठ बोलते हैं, ये सब कुछ फ्रॉड है, झूठ है। ऐसी रूहानियत नहीं है बाइबल मुकद्दस के अंदर। वो कहता है ऐसा रूहानी हो कि लोग जाने कि तुम मेरे शागिर्द हो, लोग जाने कि तुम यीशु मसीह के शागिर्द हो। इत्थे तुसीं किसी भी नौजवान नूं मिल लो, उहदे कोल पुछ लो, लोग पता नहीं तुहानूं पहलों उहदियां खामियां दसणगे। इहदा इंज दा तरीकाकारी, इहदा इंज दा ही। याद रखें, बाइबल मुकद्दस के करीब आए, सही शागिर्द बने, शाह के गिर्द घूमे, शैतान के गिर्द ना घूमे, शैतान गिर्द ना बने, शागिर्द बन जाए। अगर आप चाहते हैं वो डिसाइपलशिप में आए, फिर आपको भेजेगा, वो कहेगा मुझे बाप ने भेजा, मैं तुमको भेज रहा हूं, जाओ सबको
और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो। शागिर्दों का काम है तालीम देना और तालीम लेना। अगर शागिर्द है तो उसके अंदर उसके उस्ताद का अक्स नजर आता है। अगर आप यीशु के शागिर्द, आपके अंदर यीशु आना चाहिए। अंडसमान ने बड़ा खूबसूरत गीत गाया है, कुम्हार बने जिस बर्तन का वो बर्तन दर्पण हो जाए। दर्पण का मतलब पता है? कुम्हार बने जिस बर्तन का वो बर्तन दर्पण बन जाए। यानी जिस बर्तन को तू बनाए उसके अंदर तेरा अक्स नजर आएगा। अगर यीशु मसीह ने ये बर्तन बनाया है ना, तो इसके अंदर पादरी नासर नहीं नजर आएगा, यीशु नजर आएगा, यीशु नजर आएगा। अगर आप अच्छे बर्तन हैं जो उसके हाथों में, आए अपनी आंखों को बंद कीजिएगा और दुआ करना शुरू कीजिएगा।